So what was your PR percentile rank? Sir, I was having 89.99 percentage and 96.98 something PR. So why you decided for BWalk? Why not engineering? I decided to move to BWalk because Hi, this is Professor Pratik Joshi, and today we are here with Radhika, who is also one of our BWalk student, and we are going to have a conversation with her that what's her BWalk journey. Welcome, Radhika. good. What's your full name? My full name is Radhika Bhatia. Radhika Bhatia. Okay, Radhika, did you do your schooling from Ahmedabad or where? Yes, sir. I did my schooling from Ahmedabad only. It was a science medium school and Gujarati medium school. I completed my science from Uma Shikshan Tirth. It was a Gujarati medium school only. Gujarati medium Yes, school it only. was Gujarati. So you were a science student. Yes. And you came into BWalk. Yes. So recently science result came and there are a lot of students who are saying that whether should I go. Just yesterday we did a YouTube live and a lot of students asked whether should I go for BTech or BWalk, what's the difference. So you also must be having that choice Yes, of going into BTech and then you came into BWalk. So what was your PR percentile rank? Sir, I was having 89.99 percentage and 96.98 something PR. 96 PR and 89 percentage. Yes. Then how come your family allowed for BWalk? Because I guess there is a tremendous pressure on all those students who ranks high in science that you must go to. Were you a student of A group or B group? I was from A group only. A group. A group. A group. So there must be a pressure on going into engineering Yes, and all. sir. So why you decided for BWalk? Why not engineering? I decided to move to BWalk because there was only system of 60% and 40% ratio. That's why I choose BWalk. So I thought that if मैं जा रही हूँ उसमें तो कुछ देख के जाओ, कुछ होना चाहिए। और मेरे को पहले से ऐसा था कि मैं इंडिपेंडेंट रहूँ, अपने खुद के लिए कुछ करूँ। तो फिर मेरे को ऐसे जब मैं एक बार आई BWalk के लिए तो मेरे को समझाया कि इस टाइप से होगा, आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे जाना होगा। तो मेरे को वो ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि मैं उसी में शिफ्ट होंगी। Wow, wow. So yeah, for those students who think that whether should I go for engineering or BWalk, I don't want or we don't want to misguide the student that you should choose BWalk over engineering. But yes, both the choices are correct, provided you do what you want to do. And yes, of course, in BWalk you get more experience and you go, but there at the same time there will be less theory as compared to what you would have been studying in. उससे कम थियरी है लेकिन प्रैक्टिकल ज्यादा है. सो आई होप के योर डिसीजन स्टेज राइट एंड विल बी राइट. ओके, coming or moving on, what was your first experience, what you did, how you started your BWalk journey, and what was your first company, when did you got a placement? So, sir, I waited for 6 months to join the company. I joined. Okay, I would stop you right there. Why 6 months? Because हम तो ज़्यादातर यही बोलते हैं कि the moment you join BWalk, you should go from the very first semester. So what was your specialization? Sir, I was in IT. Right now I'm IT, pursuing okay. IT. So IT. I waited for IT company. That's why I chose. So yes, IT students, yeah, that's then it's logical that for IT student it might happen that for first semester or even for first year you need to develop your coding skills and all, and then you go to a IT company. And then you get gel up with the IT company. So which company you chose after 6 months? How did you UD Solutions Limited. UD Solutions Limited. Okay, so you are still in UD Solutions? Yes, I am. Okay, how long it's been since you are in? 1.5 years. 1.5 years. Yes, So that's a long time. So I guess you must be satisfied with your job, and that's why you stayed for a longer time there. Yes, sir. Okay. So what is your exact profile there? What do you do? Right now I'm working as a business development executive at non-tech side. Okay. To develop my technology knowledge so that I can move to technical part also.
राइट नाउ मैं ऐसे सोच रही हूँ कि पहले पूरा नॉन टेक में रह के पूरा आईटी के बारे में समझ लेना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर हम वहाँ जाते हैं, हम बात करते हैं किसी के साथ, तो हमको थोड़ा सा गैप आ जाता है बात करने में, क्योंकि एक्सपीरियंस पर्सन वो लोग 4 ईयर इंजीनियरिंग करके या फिर कुछ ना कुछ करके आईटी सेक्टर में से वो बाहर आए, तो उनकी नॉलेज हमसे तो ज़्यादा होगी। तो हम ऐसे सोचते हैं कि पहले अगर हम कुछ कर लेते हैं, समझ लेते हैं सारी चीज़ें, और बाद में अगर हम बोलने जाते हैं तो इट वुड बी गुड। क्योंकि अगर हम नॉर्मल से ही ज्वाइन कर लेते हैं आईटी सेक्टर, तो हमको क्या होता है कि जो टेक्निकल नॉलेज होती है वो कम पड़ जाती है, या तो फिर कोडिंग भी हम बोलते हैं कि हम कर लेंगे, बट 6 मंथ उसमें भी हमको चाहिए कि नहीं, सीख ले, बाद में ही ज्वाइन होना है, नहीं तो नहीं होना है ऐसे। सो मुझे ये समझाओ आप कि what are the different job roles in IT sector? Like if I tell somebody in BWalk कि आपने BWalk ज्वाइन किया and you go for BDE, तो मुझे शायद स्टूडेंट्स ना बोल दे कि नहीं सर हम तो यहाँ पे टेक्निकल के लिए आए हैं and I don't want to go for BDE. Whereas the fact is कि BDE में भी बहुत अच्छा स्कोप है. So what are the job roles in an IT company where any BWalk student can go? सर अगर हमने आईटी लिया है और अगर हमने ऐसे सोचा है कि हमको आईटी सेक्टर में ही काम करना है, तो उसमें भी आईटी में भी 2 पार्ट होता है, एक होता है नॉन टेक और एक होता है टेक। आप काम आईटी सेक्टर में ही कर रहे हो, पर उसमें भी नॉन टेक में ऐसा होता है कि अगर आपको कोडिंग नहीं जम रहा है, ये सब है, तो आप आईटी सेक्टर में नॉन टेक में जाके, जैसे बीडीई है, बीए है, फिर हम जैसे अभी डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप है, एसईओ है, ये सब सारी चीज़ें आएंगी, वो नॉन टेक में काउंट होती है। और जैसे कोडिंग है और ये सब, फिर जैसे पीएम होता है और ऑपरेशनल मैनेजमेंट के लिए हम जो करते हैं, वो सारे लोग आते हैं नॉन टेक में। और टेक में सिर्फ एक पार्ट होता है कोडिंग। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरी कोडिंग स्ट्रांग नहीं है, मेरे को कोडिंग अभी सीखने में टाइम लगेगा, क्योंकि कोडिंग क्या है अभी चेंज होती जाती है, कि कोई एक टेक्निक या फिर आप कोई एक टेक्नोलॉजी पे रह के ज़्यादा देर नहीं टिक सकते, आपको ज़्यादा सीखना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, सब कुछ लर्न करता ही रहना पड़ेगा। और जब आप नॉन टेक में होते हो तो आपके पास ये फ़ायदा होता है कि आप यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज तो सीख ही रहे हो सेमेस्टर वाइज, तो फिर आप अगर जब आपको ऐसा लगता है कि नहीं अभी मैं प्रो हो चुका हूँ, मेरे पास सब चीज़ें आ चुकी है, तो आप शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, even though you are in non-tech, you please honestly tell me कि where do you see more scope, in tech or non-tech, or is there equality of both these sectors and depends on you, how it works? फॉर एग्जाम्पल सपोज आई एम राइट नाउ वर्किंग इन अ नॉन टेक डिपार्टमेंट, सो मुझे ऐसा लगता है कि नॉन टेक में ज़्यादा स्कोप है क्योंकि क्या होता है कि अगर कोडिंग में हम जाते हैं तो कोड में ऐसे होता है कि ठीक है चलो हमसे मिस्टेक भी हो जाती है, ये चीज़ हो, और जैसे मेरे जैसे लोग हैं वो नॉन टेक में गए तो उनको एक चीज़ अच्छी रहती है कि उनकी स्पीच, अगर आप पहले से ही काम करो तो आपको सिखाते हैं कि प्रोफेशनल वे में रहना है, ये वो, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे काम आती है कि आप अगर नॉन टेक में हो तो आपको एक प्रोफेशनलिज्म में से पूरा करना पड़ता है कि नहीं हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम बता पा रहे हैं, हम हमारे मैनेजर से बात कर रहे हैं, तो आपका जो वे होता है वो कंपैरेटिवली जो दूसरे लोग होते हैं उनसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो वो चीज़ आपको ज़्यादा इफेक्ट करती है, क्योंकि अगर हम नॉन टेक में हैं और अगर मैं बीडीई में हूँ तो उसमें स्कोप मुझे इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि उसमें मेरे पे डिपेंड है। अगर टेक्निकल में मैं रहती हूँ और मैं कोडिंग कर रही हूँ तो प्रोजेक्ट आएंगे तो ही मेरे को काम करना है, और अगर नॉन टेक में हूँ तो प्रोजेक्ट ही मेरे को लाना है, तो काम मेरे को ही करना है, मैं ही लाऊंगी, मेरे को ही करना है, तो फिर वो ज़्यादा स्कोप लगता है। क्योंकि उसमें अगर जो लोग जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो और ये सब हो, जो लोग उनके लिए होता है तो उनको भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं उनको वही सजेस्ट करती हूँ कि आप नॉन टेक में जाओ, क्योंकि उसमें क्या आप इंसेंटिव बेसिस पे भी हो सकते हो, आप कैसे वर्क कर रहे हो, और आप अगर शिफ्ट भी करते हो कंपनी तो आपका स्कोप कंपैरेटिवली कोडिंग से ज़्यादा होता है। Okay, so for those student who doesn't know what BDE is, what tech, non-tech is, I'll just simplify things that in IT company or in any company, for example, forget about IT company for a moment, if it is an automobile company, तो एक साइड होती है जहाँ पे गाड़ियाँ बनती है और एक साइड होती है जहाँ पे गाड़ियाँ सेल होती है, ओके, और दोनों जरूरी है। यू कैनॉट डू कि चलो मारुति ने गाड़ी बना के रखी प्रोडक्शन प्लांट में, अभी कौन बेचेगा, एंड देन ऐसा भी नहीं हो सकता कि हमने शोरूम्स बहुत ज्यादा खोल दिए, गाड़ी वहां पे बिक रही है लेकिन बनाने वाला कोई नहीं है। सो दैट टेक्निकल पार्ट इज दोज पीपल हु आर मेकिंग द प्रोडक्ट, and non-tech part is those people who are trying to sell the product and make the product to reach to the market and to the customer, if I am correct. Yeah. और एडिंग 1 पॉइंट हियर, जैसे कि आपने बोला कि सेल और उसमें, पर ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ कोडिंग कर रहे हो तो आपको ये नहीं पता होगा कि टेक में क्या हो रहा है। आप नॉन टेक में हो तो आपको ये भी नॉलेज होगा
कि अभी कौन सी चल रही है टेक्नोलॉजी, कौन सी Okay. टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, तो वो एक आप में क्लिक होगा कि अगर आप कहीं और भी जा रहे हो तो आपको पता है कि फॉर एग्जांपल आप शिफ्ट हो रहे हो, नॉन टेक से टेक में भी शिफ्ट हो रहे हो, तो आपको ये पता होगा कि कौन सी चीज़ का स्कोप है, क्योंकि आप वही काम कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप कोडिंग में होगे तो आपको सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में ही पता होगा, और नॉन टेक में होगे तो एक चीज़ ये होगी कि आप सेल कर रहे हो, तो आपको पूरी जितनी भी टेक्नोलॉजी है, कौन सी चल रही है, कौन सी पे हम वर्क कर रहे हैं, कितने टाइम से वो हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सारा आपको खुद को पता होगा, तो आप सामने वाले को ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाओगे अच्छी तरह से। अगर मैं बोल रही हूँ कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, इस पर हम काम कर रहे हैं, तो मेरे को वो लैंग्वेज में कितना टाइम होता है, मेरे को ऐसा नहीं कि कोडिंग जितना आइडिया होगा, पर कोडिंग से कम आइडिया होगा थोड़ा सा, पर ऐसा आइडिया होगा कि मैं सामने वाले को कन्विंस कर लूं कि नहीं ये टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छी Okay. है। So that helps because आपने वो लैंग्वेज पढ़ी हुई है, you know a bit of coding as well, and at the same time फिर you need to convince the customers to give you a project for your company. तो आप उनको बता सकते हो कि ये लैंग्वेज में ये बेनिफिट है, ये लैंग्वेज में ये बेनिफिट है, सो बेस्ट ऑफ बोथ द थिंग्स यू कैन प्रोवाइड टू द कस्टमर। ओके, ऐसे कोई लोग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट है जो मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन में है एंड उसको अगर नॉन टेक में बीडी मतलब बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव आईटी में होना है, तो क्या हो सकता है, और अगर हो सकते हैं तो हाउ मच डिफिकल्टी दे मस्ट बी फेसिंग कंपेयर्ड टू द स्टूडेंट हु इज गोइंग फ्रॉम एन आईटी बैकग्राउंड। तो अगर बीवॉक आईटी करके कोई बीडी बन रहा है या फिर बीवॉक मैनेजमेंट करके कोई बीडी बन रहा है, उसमें क्या डिफरेंस होगा? अगर जो आईटी है और जो मैनेजमेंट में से करता है, तो मैनेजमेंट वालों को लास्ट में ये होता है कि उनको 6 और 7 मंथ वो समझने में हो जाते हैं, ओ ये तो ये लैंग्वेज है, इसके पीछे ये काम होता है, इसके जैसे कि अगर हमें मजेंटो है, ठीक है, हम ऐसे बोलते हैं कि ये है, तो उसके पीछे कौन सी लैंग्वेज यूज होती है वो आईटी वाले को पता होगा, पर जो अगर ये मार्केट में नहीं रहता होगा उसको नहीं पता होगा, मैनेजमेंट वाले को नहीं पता होगा कि अभी चल बता इसके पीछे कौन सा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इतना टाइम क्यों ले रहा है, ये क्या है, कौन सा डेटाबेस करना है, ये ऐसी सारी चीज़ें नहीं होती। अगर जो आईटी वाला होता है उसको ये नॉलेज हो जाता है कि डेफिनेटली अगर मैनेजमेंट वाले को जाना हो तो वो जा सकता है, पर उसको 1-2 महीने या 4-5 महीने, अगर ग्रास्पिंग पावर अच्छा है तो फिर 1-2 महीने, और नहीं हुआ तो फिर 4-5 महीने में उसको समझ में आ जाता है कि ओके ठीक है ये लैंग्वेज है, इसके पीछे भी उस बैक में क्या यूज हो रहा है वो भी मेरे को पता होना चाहिए, क्योंकि कोई आपको इंस्टेंट क्वेश्चन पूछेगा सामने आपको पता होना चाहिए, आप भी चुप रह जाओगे तो फिर आपको कौन क्यों काम देगा कोई, तो ऐसे कुछ नहीं है, ज्वाइन हो सकता है, पर आईटी वालों को ज़्यादा थोड़ा सा फायदा रहता है क्योंकि हम वही लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, हमको पता है कि उसके पीछे का, जैसे कि अगर कोई क्लाइंट आ रहा है, आपने मेरे को प्रोजेक्ट दिया, मेरे को पता है कि चलो आपने मेरे को फ्लटर में प्रोजेक्ट दिया है, तो मेरे को पता है कि फ्लटर में सीखी हुई हूँ, ये चीज़ है, इसमें ये यूज़ होता है, तो अगर कोई टाइम होता है कि मैं टाइम अपने हिसाब से बता सकती हूँ कि मैं 2-3 महीने में आपको ये चीज़ करके दे दूंगी, और मेरे बाजू में अगर कोई मैनेजमेंट वाला बैठा है उसको हम ये पूछेंगे कि कितने टाइम में होगा, तो उसको वो नहीं पता चलेगा कि कितने टाइम में होगा, उसको पूछना पड़ेगा कि कितने टाइम में होगा। So if you want to go into IT industry, then it's better to go from IT background, and that gives you an edge over the other people. Okay, then just tell me that what is the financial scope in an IT company? And स्कोप ज़्यादा अच्छा है, अगर आप, मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको जाना है तो आप आईटी में ही जाओ, क्योंकि अगर आप सिल्वर रॉक से ही अहमदाबाद से ही कर रहे हो अगर, तो अहमदाबाद इज बूमिंग राइट नाउ फॉर आईटी इंडस्ट्री, सो आप उसमें जाओगे तो स्कोप बहुत ज़्यादा है। अगर आप शिफ्ट भी करते हो 6 महीने के बाद भी, तो भी आपके लिए इतना स्कोप होगा कंपैरेटिवली अदर से। जैसे मैं अगर समझाना चाहूँ मैनेजमेंट से मैं समझाऊँ, तो अगर मैनेजमेंट में जो लोग काम करते हैं जिनको आईटी का नॉलेज नहीं है, ठीक है, चलो वो काम करे, तो वो क्या करंटली उनकी सैलरी होगी 15-20, उस पर अटक जाएंगे, और कहीं और भी शिफ्ट होंगे तो 25-30। और अगर आप आईटी से एक जगह पे काम करके कहीं और जा रहे हो, तो आपको ये चीज़ अच्छी रहेगी कि शिफ्टिंग के आपको ज़्यादा, आप स्विच कर रहे हो कि चलो मैं ये कंपनी में जा रहा हूँ, तो आपको वो चीज़ अच्छी रहेगी, क्योंकि आईटी में किसे कि बिलोंग करता है कि आप आईटी से हो, तो आपकी नॉलेज कंपैरेटिवली अदर्स से ज़्यादा मानी जाती है। तो आप शिफ्ट करोगे या स्विच करोगे तो ऐसा होगा कि नहीं ठीक है चलो इसकी तो नॉलेज ज़्यादा है, हम इसको, आपको पैकेज भी ज़्यादा का ऑफर होगा। इस तरह से डिफरेंस आ जाता है कि अगर कोई मैनेजमेंट का है तो आप एक टाइम पे अटक जाते हो कि ठीक है चलो शिफ्ट हो रहा हूँ या स्विच हो रहा हूँ तो मेरा 30% हो रहा है, पर कहीं अगर आईटी से आप स्विच हो रहे हो तो फिर ऐसा लगेगा कि नहीं ठीक है चलो ज़्यादा हो रहा है तो मैं कहीं और 30% से भी ज्यादा हाइक आईटी में मिलता है, हो जाता है अगर चाहिए तो हो जाता है। आपको वेट करना पड़ेगा पर अच्छे से मिल जाएगा वो। ओके ओके ओके, नाउ टेल मी,
बिकॉज आफ्टर टॉकिंग टू यू व्हाट आई फील इज बहुत सारे स्टूडेंट्स आईटी में आके 6 महीने के बाद, एक सेमेस्टर के बाद, हमने शुरुआत में चलो सिर्फ फ्रंट एंड ही सिखाया है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, लेकिन 12th तक तो कोई कोडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। अभी आईटी की बूम चल रही है, आईटी का ट्रेंड है, तो किसी रिलेटिव को देख लिया या फिर से फॉर एग्जांपल आपका इंटरव्यू देख लिया, आपका तो फिर भी नॉन टेक का बैकग्राउंड है, लेकिन कोई अच्छे से प्रोग्रामर को देख लिया जो महीने में 1-2 लाख कमा रहा है, एंड देन स्टूडेंट्स आर गोइंग लाइक अ हर्ड मेंटालिटी, सबको आईटी करना है, आईटी करना है, आईटी करना है। एडमिशन भी ले लिया, 6 महीने के बाद पता चला कि मुझे कोडिंग नहीं आती और मुझे या फिर प्रैक्टिस करने में मुझे दिक्कत हो रही है या फिर आई एम गेटिंग बोर्ड ऑफ डूइंग इट। एंड द रियल सिचुएशन व्हाट आई मेट टू लॉट ऑफ आईटी, एंड आई एम श्योर आपके क्लासरूम में भी आपने शायद स्टूडेंट देखे होंगे, दैट दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट रियलिटी कि मुझे प्रैक्टिस करने में बोर हो रहा है तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूं, एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू ग्रो इनटू आईटी कंपनी। तो is there any hope for those people in the areas such as product management या फिर operations या फिर sales, and how do you tell these people कि there is also a scope, because वो एक mindset से आया है कि मुझे coding ही करना है, coding ही करना है, and suddenly the reality comes कि मुझे coding नहीं आ रहा है, and now I am not able to accept that reality. So have you seen any of your friends like that and then they move successfully into non-tech? जिनको ऐसा लगता है कि हम कोडिंग कर लेंगे, हमसे हो जाएगा, बाद में बहुत सारे लोग होते हैं कि वो ये तो कोडिंग मेरे से नहीं हो रही है, मेरे से नहीं होता है, तो वो लोग के लिए यही जो नॉन टेक में बोल रही हूँ यही एडवांटेज है कि आप आईटी सेक्टर में रह के भी, जैसे अगर आईटी सेक्टर में कोई कंपनी गेम डेवलपमेंट में है तो ठीक है, उसमें भी आर्टिस्ट होता है कि 3D आर्टिस्ट है, 2D आर्टिस्ट है, तो वो आर्टिस्ट जो होता है वो डिज़ाइनिंग ही करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो आईटी लेके वो उनको कोडिंग ही करना है, उनके पास ये भी स्कोप है कि वो डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर है, उनको ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो वो और ग्राफिक डिज़ाइन करते हैं। फिर डिजिटल मार्केटिंग है, ये सारी चीज़ें हैं जो नॉन टेक में आती है पर आईटी सेक्टर में ही होती है ये सारी चीज़ें, तो वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है कि अगर आपको कोडिंग नहीं आ रही है तो ऐसे नहीं कि स्कोप खत्म हो गया है। BDE है, बिजनेस एनालिस्ट है, उसमें डॉक्यूमेंट्स का आता है, जैसे मैं सेल्स कर रही हूँ तो मैं सेल्स कर रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि मेरे को कोडिंग में इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि अगर कोडिंग नहीं आ रहा है तो मैं ऐसे ही वेली बैठी हूँ, कुछ तो कर ही रही हूँ ऐसे। Okay, so this is very interesting and you can take your time the way Radhika is taking. I guess आप अभी भी बोल रहे हो कि you still can go for tech part, but then you want to take your time and don't want to take that pressure कि मुझे अभी से अच्छा कोडर बनना है, and that's I guess a good choice कि because you are in an IT company you can switch any time, but the moment you feel that yes this is the technology you like so much कि आपको Python अच्छा आ गया, अभी शायद ऐसा हो कि आपको Python अच्छा लगे लेकिन आपके सेमेस्टर में अभी तक Python पढ़ाया ही नहीं गया, so then you need to take that time, और तब तक आप क्या करो, तो meanwhile you go to non-tech, और ऐसा भी हो सकता है कि you can make your entire career in a non-tech. So that was really good conversation. What would you suggest to those people who are budding and coming to an IT sector for BWork with a great hopes? उनको आप क्या एडवाइस दोगे? एक और मैं चीज़ ऐड करती हूँ कि अगर जो लोग को ऐसा है मेरे को मेरा बिजनेस करना है, मेरी कंपनी ओपन करनी है और कोडिंग नहीं आता है, तो आप नॉन टेक में जाओ, समझ लो सब कुछ चीजें, फिर आप अपनी कंपनी खोल फिर आप कोडर्स को हायर कर सकते हो, कोडर्स को हायर कर सकते हो, आपको पता होगा मार्केट कैसे चल रही है, कौन सी चीज कैसी है, आप ये बोल पाओगे कि ठीक है, आपको ये भी पता है कि पैकेज किस हिसाब से देना है, तो आप ये चीजें वो कर पाओगे कि नहीं ठीक है चलो मैं अपनी कंपनी खोल सकता हूँ, मैं प्रोजेक्ट ला रहा हूँ, मेरे को 2-3 चाहिए लोग चाहिए कोडिंग वाले, वो तो मैं किसी को भी अपने आप से ढूंढ के हायर करके उनको बना पाऊंगा मेरी कंपनी के अंदर, तो वो चीज़ आपको इसमें बहुत फ़ायदा रहेगा। अगर आपको ऐसा है कि नहीं मैं कोडिंग में हूँ, मेरे को कोडिंग नहीं आ रही है, मैं नॉन टेक में शिफ्ट हो जाओ, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आ रही है इसलिए आप नॉन टेक में जा रहे हो तो आपके पास कोई स्कोप नहीं है, कुछ भी नहीं है। So there is a strategic decision making. So can I assume that it could be a strategic decision making of yours as well, that you aspire to start your own IT company in future? सोचा है, अभी सीख रहे हैं, सीख जाएंगे तो खोल देंगे। Very good, very good. Okay, so thank you Radhika, thank you so much for joining us and thank you so much for guiding those students, especially to those IT students.
जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, मैं तो फॉरगेट अबाउट दो स्टूडेंट्स हु वांट्स टू कम टू बी वॉक. व्हाट आई वुड एडवाइज टू द एग्जिस्टिंग आईटी स्टूडेंट, मे बी द क्लासमेट ऑफ राधिका or maybe the juniors of Radhika who is studying at Silver Oak University or RK University, studying in first year of BWalk and stuck somewhere कि यार कोडिंग दिमाग में बैठ नहीं रही है, and what to do, where is the scope. This is the perfect example I would guess for you, living example कि how you can make your fantastic career, be it in tech or be it in non-tech. At the same time, it doesn't mean कि when you go for a non-tech तो ऐसा नहीं है कि कभी आपको कोडिंग करना ही नहीं है. यू टेक योर टाइम, द मोमेंट यू आर रेडी फॉर इट, यू गो फॉर इट, एंड येस देयर इज अ डेफिनेटली अ बिग स्कोप ऑफ स्टार्टिंग योर ओन स्टार्टअप एंड बीइंग एन एंटरप्रेन्योर. थैंक यू राधिका.